Hello students, this is Swapnil Dage. Welcome to the Maths Magnet. So our next topic is equations reducible to a pair of linear equation in two variables. Means we have to solve the reducible linear equations. Okay, so what is actually means reducible equations मतलब क्या होता है actually? So we have this table here and we have this equation 3 by x minus 4 by y is equal to 8. So this is the equation. Number of variables in this is x and y. So two variables are there. Okay, but whether this is linear equation or not. So this is not linear equation. Why it is not linear equation? Because when we bring this x to the numerator side, that x will becomes minus, the power of that x becomes minus 1, right? Minus 4 y raised to minus 1 is equal to 8. So is this linear equation? This is not linear equation. Why? Because for being linear equation, that equation must has the 1 power, or degree of that equation must be 1. Okay, so in this case the degree is becoming minus 1, so it is not linear equation, right? Okay, so we can write the not linear. This is not linear equation, so we have to complete this table accordingly. So 6 by x minus 1 plus 3 by y minus 2 is equal to 0. This is containing two variables, right? But this is also not linear equation, so not linear. Okay, not linear equation. Similarly, this also has two variables, but this is also not linear equation. This equation also has two variables here, x and y, two variables, but this is not also linear equation. So we have to convert this kind of equation into the linear equation. Okay, so that is why we called these equations as a reducible to a pair of linear equations. Okay, reducible pair means we can reduce that equation in form of linear equation. We can convert this kind of equation into the linear equation, and then we can easily solve that equations and find the values of the x and y, or solution of the equation. Okay, so let us learn how to solve this kind of equations by using the reducible format. So reducible format से कैसे solve कर सकते हैं इसके बारे में study करेंगे. Okay, so this is the equation. Okay, these are two equations. So first equation and this is second equation. We also has written the answers of the same here. Okay, so answers भी लिखे हैं ताकि हमें पता चल सके आंसर करेक्ट है हमें. सो 4 बाय एक्स. ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक से देखना है. सो 4 बाय एक्स को कैसे लिखा जाता है एक्चुअली? 4 बाय एक्स का मतलब क्या होता है? 4 बाय एक्स मतलब होता है 1 बाय एक्स इंटू 4, राइट? 1 बाय एक्स इंटू 4 होता है, करेक्ट है ना? सो अभी यहाँ पे इसे हम 5 बाय वाई को भी ऐसे लिख सकते हैं. 5 बाय वाई का मतलब क्या होता है? 1 बाय वाई इंटू 5, राइट? सो हमें इस इक्वेशंस में क्या करना है? ये 1 बाय एक्स जो है इसे मैं कुछ तो अलग अल्फाबेट से डिनोट करूंगा. ओके, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करूंगा. लेट अस से इट इज ए. ओके, एंड 1 बाय वाई इज बी. ओके, सो मैं ये जो 1 बाय एक्स को मैंने डिनोट किया ए एंड 1 बाय वाई को डिनोट किया बी. अभी ये इक्वेशंस कुछ अलग तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब हमें जो लीनियर इक्वेशंस में हमें कन्वर्ट करना है तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो कैसे होंगे वो देखते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 उसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई, 4 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा या इसे बनाऊंगा लीनियर इक्वेशन. अभी तो फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? सो 1 बाय एक्स इंटू 4 प्लस 1 बाय वाई इंटू 5 इज इक्वल टू 7 है, करेक्ट है ना? सेम इक्वेशन है. अभी मैं कंसिडर करूंगा कि लेट अस पुट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू बी. तो 1 बाय एक्स को मैं ए लिखूंगा, 1 बाय वाई को बी लिखूंगा. देन क्या होता है देखेंगे. सो 4a हो गया ये
प्लस ये हो जाएगा 5b, राइट, इज इक्वल टू 7। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला। ओके, जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 को कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 3 में, वैसे ही हमें इक्वेशन नंबर 2 को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। तो देखते हैं 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 5। सो 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 5 है, करेक्ट है ना। तो 1/x को क्या लिखने वाले हैं हम, a लिखने वाले, 1/y को क्या लिखने वाले, b लिखने वाले। सो पुट दैट वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। सो 3a plus 4b is equal to 5. So this is equation number 4. So we have these two equation here. Now we can solve this equation by any method. Okay, any method means we can solve it by elimination method, substitution method, Cramer's method. Okay, graphical method से नहीं करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. So we can solve this kind of equation by elimination method, substitution method and Cramer's method. Okay, तो मैं अभी यहाँ पे ये इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूंगा. तो 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए मुझे इसके जो वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे. सो मैं क्या करूंगा अभी, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 माइनस 4b डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ. मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा ये. सो a इज इक्वल टू 5 माइनस b. ओके, ये माइनस यहाँ पे 4b माइनस 4b हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो गया. सो इसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. सो वैल्यू ऑफ a को मैं a के इंस्टेड पुट करूंगा. सो 5 माइनस 4b बाय 3, ओके, प्लस 5b प्लस 5b इज इक्वल टू 7. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाला हो तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपना आंसर आता है कि नहीं आता. सो 4 इंटू आना ही चाहिए. 4 इंटू 5 इज 20 माइनस 4 इंटू 4 इज 16b, ओके, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5b इज इक्वल टू 7. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 20 माइनस 16b इंटू 1 यही आएगा, प्लस 3 इंटू 5 इज 15b डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल टू 7. सो ये 3 जो है वो डिवाइड है यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो बिफोर दैट ये सॉल्व करके लेते हैं. 20 माइनस 16b माइनस 16b प्लस 15b कितना आएगा, 1b माइनस 1b आएगा, राइट, माइनस 1b मतलब माइनस b आया इज इक्वल टू ये 3 इंटू 7 इज 21. सो माइनस b इज इक्वल टू 21, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा. So therefore minus b is equal to 21 minus 20, not 21. 21 minus 20 is 1. So it means b का वैल्यू का कितना है अपना, -1. b is equal to कितना है, -1 है. अभी ये जो b की जो वैल्यू मिली है हमें, b is equal to -1, ये यहाँ पे पुट करेंगे. यहाँ पे पुट करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, राइट, a की वैल्यू मिलेगी. तो a की वैल्यू मिलने के बाद हम उसे फिर इसमें फिर से पुट करके वो x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखते हैं b इज इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, मुझे a मिल जाएगा. सो 5 माइनस 4 b की वैल्यू अपनी -1 डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो क्या आएगा आंसर, 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3. सो 9 हो जाएगा. 5 प्लस 4 इज 9. सो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 9/3. सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. सो a इज इक्वल टू क्या है अपना, a इज इक्वल टू 3 है. a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -1 है. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1. तो ये जो वैल्यूज है ये फिर से यहाँ पे 1/x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 1/x की जगह पे क्या पुट करना है, a को पुट करना है, राइट. 1/x की जगह पे a को, तो a की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 है, राइट. तो यहाँ पे मैं अभी पुट करूंगा वैल्यू, a और b के वैल्यूज पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो a की वैल्यू क्या है, 1/x इज इक्वल टू a कितने है, 3 है. सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, राइट, रेसिप्रोकल कर सकते हैं. तो रेसिप्रोकल करने के बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, राइट, 1/3. एंड b का वैल्यू अपना -1 है.
सो 1/y इज इक्वल टू -1, इसका भी रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1, राइट। सो a का वैल्यू, x का वैल्यू है 1/3, x का वैल्यू 1/3 एंड y की वैल्यू -1। ओके, समझ में आया? समझ में आया? आपको यहाँ पे अलग क्या करना था, रिड्यूसिबल फॉर्म बोला जाता है इसे। तो पहले वो लीनियर इक्वेशन में नहीं था, उसके हमने रिड्यूस करके उसे लीनियर इक्वेशन बनाया और फिर अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है इलिमिनेशन या ये इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। फिर ए एंड बी वैल्यू फाइंड करके उसको हमने यहाँ पे 1/x एंड 1/y में पुट करके x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट किए। ओके, सो सिमिलरली हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सो ये सॉल्व एग्जांपल था, ये सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। अभी सॉल्व एग्जांपल का ही क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा अलग है, राइट, थोड़ा सा जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व किया था वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो वहां पे 1/x था एंड 1/y, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 1/x माइनस वाई एंड 1/x प्लस वाई, ऐसे। तो सिमिलर प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, सिमिलर प्रोसेस है, हमें कुछ भी अलग करना नहीं है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। ओके, रूल फॉलो करना है मैथमेटिक्स के। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, मैं ए कंसिडर करूंगा, 1/x प्लस वाई को मैं बी कंसिडर करूंगा। तो 1/x माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1/x प्लस वाई यहाँ पे भी है, इस इक्वेशन 1 में भी है, 2 में भी है। ओके, सो अभी इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्म करेंगे नया इक्वेशन। सो ये इक्वेशन नंबर 1 पहले बनाता हूं मैं। सो 4a प्लस डायरेक्टली b आ जाएगा इज इक्वल टू 3 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे? सो ये 2a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना है, 5। ओके, ये इक्वेशन नंबर 4 है, राइट। इक्वेशन नंबर 4 आया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगा 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 9, राइट। सो फिर इसे एडिशन करेंगे इसका। सो 3 माइनस 3b प्लस 3b कैंसिल होके ये 14a बनेगा। 14a इज इक्वल टू ये आएगा 14। सो a विल बी 14 डिवाइडेड बाई 14। 14 डिवाइडेड बाई 14 कितना आएगा? a इज इक्वल टू 1 आएगा, राइट। a इज इक्वल टू कितना आया? 1 आया। तो ये a का जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। सिंपल वाला इक्वेशन होना चाहिए। 4a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a का वैल्यू 4 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 माइनस 4। देयरफॉर b का वैल्यू -1 आया, ठीक है, -1। अभी ये फिर से हम उसे दे देंगे वैल्यूज। a को क्या कंसिडर किया था हमने? 1/x माइनस वाई, तो वहां पे पुट करेंगे फिर से 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी फिर से इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन 1 था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फिर से इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन नंबर 5। फिर से नया इक्वेशन आया। ओके, अभी b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू, b कहाँ पे? ये b को क्या कंसिडर किया हमने? 1/x प्लस वाई। सो 1/x प्लस वाई को क्या कंसिडर किया? b है। b की वैल्यू कितनी है? ये -1। सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन आ रहे हैं ना, इक्वेशन नंबर 6 है। अभी इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो करेंगे, एडिशन करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 का, तो क्या हो जाएगा? इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, एडिशन करने के बाद ये कैंसिल हुआ। x इज इक्वल टू कितना आया? x इज इक्वल टू आया 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, राइट। x इज इक्वल टू कितना है? 0 है ना यहाँ पे 0। ओके, अभी y का वैल्यू कैसे पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी है? 0 है। सो y इज इक्वल टू कितना है? -1। सो y इज इक्वल टू -1। y x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -1। ओके,
तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, दिखने में थोड़े से अलग या डिफरेंट या डिफिकल्ट दिखते हैं, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे इजीली, लास्ट तक स्टेप करना है आपको। ओके, लास्ट तक आप जाओगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। आफ्टर दैट अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। हर एक प्रैक्टिस सेट के आपको एक्टिविटीज मिलेंगे। हाँ, हर एक प्रैक्टिस सेट के एक्टिविटीज हमें दिखाई देते हैं, समझ में ना। तो अलग 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 तरीके एक्टिविटी मिलेंगे, लेकिन ये एक्टिविटी में भी वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। ओके, तो क्या है देखो, यहाँ पे 1/x-1 को हमने m कंसिडर किया है एंड 1/x-2 को n कंसिडर किया है। तो न्यू इक्वेशंस ऑन सॉल्विंग। अभी इक्वेशंस, यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करके, तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे हम डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आंसर लिख के रखे, देखते हैं वो आंसर आते हैं क्या। सो नए इक्वेशन बनेंगे, m को m कंसिडर करना है 1/x-1, सो 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 आया। एंड इक्वेशन नंबर 4 भी आएगा, 6m राइट माइनस 3n इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, तो ये इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा, तो वो है 3 × 5 = 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6। ओके, ये बना, ये आ गया। अभी इसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसका दोनों का एडिशन करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 3n कैंसिल हुआ, ये 21m इज इक्वल टू, ये आया 7, देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आएगा, 7/21, सो 7 1 7, 7 3 21, सो m इज इक्वल टू कितना आया, 1/3। ओके, 1/3 आया, m इज इक्वल टू कितना आया, 1/3। तो यहाँ पे देखना है, ये हमने 5m प्लस n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई, 1/3 राइट, 1/3, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 लिखिए, 1/3। अभी n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू कितना आएगा, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 1/3 प्लस n इज इक्वल टू 2, सो 5/3 प्लस n इज इक्वल टू 2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 5 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, so 5 plus 3n is equal to 6, therefore 3n is equal to 6 minus 5, right, so 3n is equal to कितना आया, 1 आया, therefore n is equal to 1/3 ही आया, n की वैल्यू भी कितनी आई, 1/3, so n भी 1/3 है। so अभी यहाँ पे पुट करेंगे, राइट, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 है ना वैल्यू, अभी ये 1/3 वैल्यू फिर से ये जो अपना 1/x-1 एंड 1/y-2 इसमें पुट करेंगे, फिर वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अपने आंसर्स मैच होते हैं क्या। ओके, सो ये m इज इक्वल टू 1/x-1 इज इक्वल टू m है। ओके, दैट m इज 1/3, राइट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल करेंगे, x-1 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 + 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ओके, x की वैल्यू आई अपनी 4। अभी ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 1/y-2 इज इक्वल टू क्या था अपना, n था, n की वैल्यू क्या आई, 1/3 आई, सो 1/3, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, सो y-2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 + 2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू, 5। ओके, तो दोनों भी आंसर्स हमारे मैच हुए, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके,
So this was about the activity which was depends on the practice set number 1.4. So let us start with the practice set now. Okay, तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे अभी डायरेक्टली. प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4. प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4. तो सेम क्वेश्चंस है, कुछ भी अलग करना नहीं है. जो हमने अभी प्रैक्टिस में देखा वही हमें प्रैक्टिस सेट में भी करना है. प्रैक्टिस सेट में हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो 2/x है, मतलब 1/x. इसे कैसे लिखा जाएगा? ये 2 इंटू 1/x इंटू 2. ओके, या 2 इंटू ऐसे लिखेंगे. 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15 है. राइट, तो इसे 1/x को हम u कंसिडर करते हैं एंड 1/y को हम v कंसिडर करते हैं. सो इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 15. सो इक्वेशन नंबर 3 है ये. सिमिलरली इक्वेशन नंबर हम 2 को भी कन्वर्ट करके देखते हैं क्या हो जाएगा. तो इक्वेशन 2 को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो दैट इक्वेशन बिकम्स 8u प्लस 5v इज इक्वल टू 77. सो इक्वेशन नंबर 4 आया. ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे. अभी क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया तो भी चलेगा, या अपना एलिमिनेशन मेथड से किया तो भी चलेगा. एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं. सो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, 3 को, एंड इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, नए इक्वेशंस बनेंगे. क्या बनेगा? 5 इंटू 2 इज 10u माइनस 15v इज इक्वल टू 15 5 इज 75. नेक्स्ट 8 इंटू 3 इज 24u प्लस 15v इज इक्वल टू 77 इंटू 3. 77 इंटू 3 231 एडिशन करेंगे. सो 15v कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये आंसर आया 34u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75 है ना, 75. तो एडिशन करेंगे ये 306. therefore u is equal to 306 divided by 34. सिंप्लीफाई करेंगे. 2 17 जा 2 5 एंड 3 आएगा. सो u इज इक्वल टू 17 1 जा 17, 17 9 जा 153. सो u इज इक्वल टू 9. u कितना आया अपना? 9 आया. ओके, u की वैल्यू 9 आई. अभी v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 15. u की वैल्यू 9 है. सो 2 इंटू 9 minus 3v is equal to 15. So therefore minus 3v is equal to 15 minus 2 into 9 is 18. यहाँ पे माइनस हो जाएगा वो. So minus 3v is equal to minus 3, right? So minus 3. तो both side minus से cancel हो जाएगा. So 3v is equal to 3. It means v is equal to कितना आया? 1 आया. ओके, ये आंसर नहीं है, लेकिन हमें x and y फाइंड करना है. So 1/x कितना है अपना? 1/x क्या है? u है. u की वैल्यू कितनी है? 9. सो 1/x इज इक्वल टू 9. रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1/9. ये वैल्यू मिली. x इज इक्वल टू 1/9 एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे. 1/y इज इक्वल टू कितना है? v है, तो v की वैल्यू 1 है. सो रेसिप्रोकल करने के बाद y इज इक्वल टू 1. सो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1/9 है. ये दो करेक्ट आंसर आए. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था. प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1. ऐसे ही हमें सिंपल इक्वेशंस है, क्वेश्चंस है. अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो कन्वर्जन था. ये 1/x को u से कन्वर्ट करके, मतलब इंस्टेड 1/x हमें u पुट करना है, v पुट करना है 1/y के, और फिर से ये क्या होता है, बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं ना, वहाँ कहाँ पे गलती करते हैं बच्चे? ये u और v के वैल्यू
कैलकुलेट करके या फाइंड करके यहाँ यहीं पे रुकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमें u एंड v नहीं पूछा उन्होंने, u एंड v की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, x एंड y को फाइंड करना है। तो ये लास्ट स्टेप जो है वो करना इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी। So in this question we have 1 by x plus y को कंसिडर करेंगे a एंड 1 by x minus y को कंसिडर करेंगे b। ओके, पहले इक्वेशन बना के लेते हैं। सो इक्वेशन क्या होगा, 10a plus 2b is equal to 4, इक्वेशन नंबर 3, एंड 15a, राइट, 15a minus 5b, राइट, 5b इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ओके, अभी इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 को, एंड इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नए इक्वेशन बनेंगे अपने। सो 50a, राइट, 50a प्लस 10b is equal to 20 and 30a minus 10b is equal to -4। अभी एडिशन करेंगे तो ये 10b कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 80a आया, 80a is equal to 16। ओके, so a is 16 divided by 80। So 16 1 the 16, 16 5 is 80। ओके, सो a का वैल्यू कितने है, 1/5। अभी b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू, तो b के लिए हम 10a plus 2b is equal to 4 में पुट करेंगे। सो 10 into 1/5 plus 2b is equal to 4। It means 5 1 is 5, 5 2 is 10, so 2 plus 2b is equal to 4। So 2b is equal to 4 minus 2, therefore 2b is equal to 2। It means b is equal to 1। So b की वैल्यू आई 1। यहाँ पे रुकना नहीं है, अभी x एंड y को फाइंड करेंगे। ओके, फिर से नए इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे अभी। सो फिर से नए इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे, फिर उसे सॉल्व करना है। सो a की वैल्यू क्या है, 1/5, तो वहां पे पुट करेंगे 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, a, तो a की जगह पे क्या है, 1/5 पुट करेंगे, 1/5। सो रेसिप्रोकल किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 आया। अभी इक्वेशन नंबर 6 भी आएगा, 1 देखो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 6, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1। सो इसे रेसिप्रोकल किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अभी 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो ये कैंसिल होके 2x इज इक्वल टू 6। इट मीन्स x इज इक्वल टू 6/2, 6/2 आ जाएगा। ओके, 6/2 मतलब कितना होता है, हाँ, 6/2, therefore x is equal to 3। ओके, अभी y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, सो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, therefore y is equal to 5 minus 3, therefore y is equal to 2। x की वैल्यू कितनी आई अपनी, x की वैल्यू 3, राइट, एंड y की वैल्यू 2। ओके, y की वैल्यू है 2, 5 minus 3 is 2। सो ऐसे हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या करना है, वही प्रोसेस रिपीट करना है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाओगे। आपको ये तो पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले नहीं है। जो भी हमारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से कोई भी सिंगल भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, 99% एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब वही डिजिट्स नहीं आएंगे, आपको भी पता ही। ओके, तो क्या होगा फिर, क्या आएंगे,
क्या होगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे अलग, डिजिट्स चेंज होंगे, राइट, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। तो कंसेप्ट समझना है आपको, ओके, कंसेप्ट समझना। अभी यूट्यूब के लेक्चर्स आप देख रहे हो, लेकिन आपको बहुत सारे सोर्सेस है, आपको यूट्यूब है, गूगल है, एआई है, मतलब चैट जीपीटी वगैरह है, आप वहाँ से, या गाइड्स है, तो डाइजेस्ट है, आप वहाँ से देख के कॉपी कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करोगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा आपका, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे लेक्चर्स में से या कोई भी जो सोर्स है आपका पढ़ने का, जो सोर्स है ना, वहाँ पे आपको वो नॉलेज गेन करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो वहाँ पे, यहाँ पे x माइनस एक्स बाय वन बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, हम कंसिडर करेंगे m, ओके, एंड 1 बाय y प्लस 3 को कंसिडर करेंगे n, ओके। सो नए इक्वेशन बनेंगे फिर से। सो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 4, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। आपको याद होगा शायद कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में, किसी दो लीनियर इक्वेशंस में कोएफिशिएंट एक्सचेंज है, कोएफिशिएंट्स अगर एक्सचेंज होते हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यस, तो हमें इसे पहले ऐड करना है, नया इक्वेशन बनेगा, फिर सब्सट्रैक्ट करना है, फिर से नया इक्वेशन बनेगा, और फिर m एन n के वैल्यू फाइंड होंगे, और फिर वो m एन n की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके x एंड y के वैल्यूज फाइंड करना है। सो पहले एडिशन करेंगे। क्यों कर रहे हैं एडिशन, हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा रूल क्या है, ये 31 है, इसको पहले कोएफिशिएंट इक्वल करना है। एडिशन क्यों कर रहे हैं, याद है आप, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में अगर x यहाँ पे m का कोएफिशिएंट यहाँ पे n को है, एंड n का कोएफिशिएंट यहाँ पे m को है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले एडिशन करते हैं, बाद में सब्सट्रैक्शन करते हैं। इस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो इजी होता है, फिर इजी हो जाएगा, ओके। तो देखते हैं। सो 7 प्लस 1 इज 8 एंड 2 प्लस 3 इज 5, सो 58m 58n इज इक्वल टू 417, ओके, करेक्ट है ना, 17। सो इट मीन्स वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 58 से डिवाइड करेंगे, 58 से, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 5 बन गया, इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो अभी ये सब एडिशन किया है, अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे। 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 माइनस 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। सब्सट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंजेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे 27 माइनस 31 मतलब माइनस 4m प्लस 4n इज इक्वल टू माइनस 4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। सो माइनस m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अभी इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, 5 एंड 6 की एडिशन कर सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को ऐड करेंगे। सो m प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 1, सो m कैंसिल हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल टू 1, राइट, n की वैल्यू आई 1। तो अभी m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m की, तो m प्लस n इज इक्वल टू 3, m प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स m इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि m एंड n दूसरी वैल्यू है, x एंड y फाइंड करना है। सो पुट करेंगे फिर से, x 1 बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, m की वैल्यू 2 है, तो इसे अगर हमने, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो ये 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये 5
सो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, इट मीन्स ये 5 हो जाएगा 2x, देयरफॉर 5/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितने है अपनी 5/2, सो 5/2 है x। अभी y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y के लिए क्या करना है, y के लिए यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू, y के लिए वैसे भी कर सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू, तभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये करेंगे 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है n की वैल्यू कितनी है अपनी n इज इक्वल टू 1 है। सो रेसिप्रोकल किया तो 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक से ध्यान देना है, y इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस 3 कितना होता है -2, y इज इक्वल टू कितना है -2, y इज इक्वल टू -2। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। अभी एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें थोड़ा सा अलग कुछ दिख रहा है, कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से थोड़ा सा अलग कुछ दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे 3x प्लस वाई, ओके, यहाँ पे 3x प्लस वाई है, यहाँ पे 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है कि यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, राइट, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा 2 का क्या करेंगे देखते हैं अभी। प्रोसेस सेम है, वही प्रोसेस करना है, ओके, प्रोसेस सेम है, कुछ अलग नहीं। तो सॉल्व करते हैं। पहले 1/3x प्लस वाई को कंसिडर करते हैं a, एंड 1/3x माइनस वाई को कंसिडर करते हैं b। ठीक है, तो अभी इक्वेशन बनाएंगे। सो इक्वेशन क्या बनेगा, ये देखो पूरे को करना है ना a, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3/4 बन गया, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अभी ये देखो कैसे आया, ये रैशनल नंबर है 3/4, तो हमें 4 नहीं चाहिए, तो 4 को हटाएंगे। तो 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को 4 से सिंप्लीफाई करके लेंगे। ओके, मैंने इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन बनाया नहीं अभी तक, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करके फिर बनाएंगे। ओके, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे के बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इज 4a प्लस 4 इंटू बी इज 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 3/4। सो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ओके, समझ में आया ना। तो अभी नया इक्वेशन, अभी ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसे बनाएंगे। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है आपको, ये जो है ना, ये जो है ना, ये पूरा, इसे हमने a कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/, देखो ठीक से ध्यान देना है, इसको 1 a कंसिडर किया है, राइट। सो ये बन जाएगा a/2, ओके, a/2 बन जाएगा, माइनस ये इसको b कंसिडर किया है, तो ये बन जाएगा b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो ये डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए हमें, 2 नहीं चाहिए, 8 भी नहीं चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी 8 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 8 रहेगा ना, 8 के जगह पे 4 आ जाएगा, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 से मल्टीप्लाई ये पूरे इक्वेशन को करने के बाद क्या आता है देखते हैं, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 इंटू a/2 माइनस 8 इंटू b/2 इज इक्वल टू 8 इंटू -1/8। 8 कैंसल, 2 1 2, 2 4 2 1 2, 2 4 सो क्या बना इक्वेशन, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो अभी 3 एंड 4 का एडिशन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 3, एंड 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। एडिशन करेंगे, सो ये कैंसिल होके ये 8a आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, देयरफॉर 3 - 1 है तो 2 आया, a इज इक्वल टू 2/8। सो 2 1 2, 2 4 सो a की वैल्यू कितनी है अपनी, a इज 1/4, a की वैल्यू 1/4 है। ओके, 1/4। अभी b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू, तो इसमें पुट करते हैं 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3,
सो 4 इंटू ए की जगह पे 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना? तो 4 कैंसिल हो जाएगा, देखो 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है? 3 माइनस 1 कितना है? 2 है ना? 2 है। 3 माइनस 1 2। सो 4b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना? 2/4। 1 जा 2 जा। सो b इज इक्वल टू कितना है अपना? b इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू कितना है? 1/4। a इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/2। b इज इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ पे हमें अभी सॉल्व फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये देखो ये जो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर वो सॉल्व होगा। बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन, मतलब आंसर बड़ा है। मार्क्स बड़े चाहिए तो बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है? 1/4। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अभी कितना नंबर का इक्वेशन है? अभी 4 इक्वेशन हुए थे, अभी इक्वेशन नंबर 5 है। ओके, अभी इस तरीके से हम ये भी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। सो देखो यहाँ पे अभी इक्वेशन नंबर कितना था? ये 5 था। ये इक्वेशन नंबर 5 है ना, इक्वेशन नंबर 6 है। 5 और 6 का हम एडिशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 का हम एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, एक्स एंड वाई के वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 2 है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 6 है। देखो इसे एडिशन किया तो ये y कैंसिल होके 6x इज इक्वल टू 6 आएगा। सो x इज इक्वल टू कितना है अपना? x इज इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ पे है क्या? x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1। अभी y की वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये वाला इक्वेशन जो है उसमें पुट करेंगे या इसमें पुट करते हैं। चलो यहीं पे पुट करते हैं, यहीं पे पुट करते हैं। चलो x इज इक्वल टू 1। 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 1, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 2 माइनस 3। सो 2 माइनस 3 मतलब -1 माइनस वाई। सो दोनों के साइन सेम है, चेंज हो जाएंगे। y इज इक्वल टू कितना है? y इज इक्वल टू भी ऑल्सो 1। So x is equal to 1 and y is equal to 1. So this was the question number 4. Question number 4 मतलब हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 हमारी कंप्लीट हुई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशीट डालूंगा। इसके 1.4 सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस सेट वाइज वर्कशीट मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है। अगर वो वर्कशीट में अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वो भी सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, समझ में आया है? ओके, जो समझ में आया तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंसेप्ट ऑफ 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, प्रैक्टिकल यूज ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। तो वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिकल यूज होते हैं। प्रैक्टिकल यूज एक्चुअली हम लीनियर इक्वेशन का यूज कहाँ पे करेंगे तो प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज होगा तो वर्ड प्रॉब्लम से वो पता चल जाएगा। सो 1.5 प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। थैंक यू।